interpolation, you will get Newton's forward difference interpolation formula, Newton's backward difference interpolation formula, Newton's central difference interpolation formulas. So for each, we'll do one or two questions. So the name of the topic is interpolations. Interpolation. I will tell you what is the basic of the interpolation and how we are going to find out. Interpolation means, just for example, suppose that we have some x0, x1, x2, x3, x4, and so on. Some x values are there, set of values, y0, y1, y2, y3, and y4, and so on. These are some, suppose we have some set of values. Actually, interpolation means we are going to find the value between, like this. For example, the value which is lies between x2 to x3, and we are going to find out corresponding y2 to y3 value is what. Okay, this is called actually interpolation. Interpolation means inside value, inside between x1, x2, x3. We are going to find out corresponding y1, y2, y3, like that. So let us see what is the formula. First of all, we are doing forward difference. Newton's forward difference interpolation. कैलकुलेटर है ना आपके पास अभी? Yes, sir. So ready with the calculators. Interpolation formula. Now look at that formula is what. We have a lengthy formula, but how many steps we have to do it according, it's depend upon the problem. Look at that formula. Y is equal to f of x is equal to, the first value will be y naught plus p into, this is called delta y naught plus p into p minus 1 by 2 factorial into delta square y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 divided by 3 factorial into delta cube y naught plus, and so on. If you want the next value, it will be p into p minus 1, p minus 2, p minus 3 by 4 factorial into delta power 4 by delta power 4 into y naught, where delta y naught, delta square y naught, delta cube y naught, how to find out, I will tell you. Before that, the value of p will be x minus x0 by h is the value of p, and from this, if you cross multiply, ph will go that side, and x value becomes x0 plus ph. Okay, now look at the next is how to form, what do you call it, is a formation of forward table. Formation of फॉरवर्ड टेबल. टेबल कैसा बनाएंगे? फॉरवर्ड टेबल. हाउ टू गेट द वैल्यूज इन टेबल? फॉर्मेशन ऑफ टेबल.
Now look at that. टेबल बनाना इम्पोर्टेंट है. यहीं पे बना देंगे इसका टेबल. फॉरवर्ड टेबल, बैकवर्ड टेबल. टेबल में आपको पता चल जाता प्रॉब्लम में क्या करना है. वो काम करेंगे थोड़ा छोटा लेंगे. दिस इज फॉर x values. This is for y values. This is for delta square values. Delta. This is delta square. Delta square. Delta square. Now look at that. How to take the values. Look at x. इतना छोटा. Okay. X, y. This is for delta y. This is for delta square y. This is for delta cube of y. This is for delta power 4 of y. Now corresponding values are x0, x1, x2, x3, x3 के बाद आता है x4, x4. ये थोड़ा सा टेबल बनाने के लिए टाइम लग जाएगा आपको, प्रॉब्लम में नहीं लगेंगे. y0, y1, y2, y3, y4, and this is y5. This is given in our question. These values will be given in our question. This is, ये टेबल थोड़ा अच्छे से बन जाएगा, प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कर लेंगे. ठीक है. Now look at when you are going to find out del y. Del y is nothing but the difference between these two. मतलब y1 minus y0 is del y. Del represent the difference between these two. So when you are going to find out this one, del, ये टेबल का नाम है del y0, which is equal to y1 minus y0.
y1 minus y0 is called del y1. Next, del y1 means it is y2 minus y. Now look at del y2 means it is y3 minus y4. दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से लिखेंगे, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे। ये दोनों का डिफरेंस है, देखो ये दोनों का डिफरेंस है, इसका y1 माइनस y0 का डिफरेंस। and now next del y1 which represent the difference between y2 minus y1. This is called del y1. Next, if you find out del y3, y3 y2, del y2, del y2 is equal to y3 minus y. ये दोनों का डिफरेंस ये है, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस ये है, ये दोनों का difference, ठीक है। मैं आपको लास्ट में पूरा सही से बता देता हूँ पर डेल y2 हो गया, इसके बाद आ जाता है आपका डेल y3। नेक्स्ट डेल y3, del y3 is equals to y4 minus y3, y4 minus, next finally del y4 means y0 y1, yes, it is equal to y5 minus y4। ये हो गया फर्स्ट टेबल, ये वैल्यूज हो गया। ये मतलब इसकी वैल्यू आगे देखो अपने को, डेल y0 की वैल्यू, डेल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे, जब भी आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, इफ यू टेक द डिफरेंस दिस मीन डेल स्क्वायर y0 का मतलब क्या होता, डेल स्क्वायर y0 का मतलब डेल y1 माइनस डेल y0, इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट डेल स्क्वायर y1, del square y1 means this is del y2 minus del y1. Next del square y2, del square y2 means it is the difference between del y3 minus del y2. Next del cube y3, del cube, del cube क्या होता है, del square is not, del square y3 is equals to del y4 minus del y3। अब del cube means इन दोनों का डिफरेंस, ये यहाँ पर आएगा, del cube y0 means ये डिफरेंस del स्क्वायर y1 minus del square y0, this is del cube y1 means del square y2 minus del square y1। Finally del to the power of 4 y0 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो del cube
y1 माइनस डेल क्यूब y0। बट अपने टारगेट में अपने को होना है डेल क्यूब, मतलब ये वैल्यू की जरूरत रहती है अपने को। डेल स्क्वायर की वैल्यू जो पहली वैल्यू है, डेल y0 मतलब फॉरवर्ड टेबल में फॉरवर्ड स्टार्टिंग के पूरे वैल्यूज इंपॉर्टेंट ये वैल्यूज। डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0, डेल पावर 4 y0। तो ये कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, ये डिफरेंस x0 x1 x2 x3 x4 xy क्वेश्चन में है, y0 y1 y2 y3 y4 y5 क्वेश्चन में है। डेल y फाइंड आउट करना मतलब y1 माइनस y0। del y1 means y2 minus y1, del y3 means y3 minus y2, del y4 means y4 minus y3, del y5 means ऐसे डिफरेंस 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 करते रहना। ये टेबल का नाम भी डिफरेंस है, टॉपिक का नाम भी डिफरेंस है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ टेबल बोल के। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए इसी को बेस बना के एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है और उसका सोल्यूशन आपको कैसा देना रहेगा। नेक्स्ट पेज विल गो एंड विल फाइंड आउट वन क्वेश्चन, विल डू इट वन क्वेश्चन। ये ग्रीन बोर्ड ले लेंगे। ये अभी क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये जो टेबल बनाना मैं आपको सिखाया वो तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा टेबल कैसा बनाते हैं, बट आपको खाली क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें। फाइंड फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल which takes the following values, which takes the following values, following values। यहाँ पर क्वेश्चन में x की वैल्यूज 0 1 2 3 है। 0 1 2 3। अपना टेबल कितना लंबा जाएगा वो अपने वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज है 1 2 1 10। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंटिन्यू है, ऑल्सो फाइंड f of y4 एंड f डैश ऑफ y4। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखो आपको मेंशन तो नहीं करा कि न्यूटन फॉरवर्ड टेबल से करना है, बट इंपॉर्टेंट चीज देखो आप, f of 4, 3 के बाद ही 4 आता ना। यस सर। हाँ, और ये जो वैल्यूज है ये 1 2 1 10। क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन कर देता, बट ये क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं करा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेबल से करना है। और एक चीज क्या है बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिसको अगर आप क्वेश्चन में फॉरवर्ड बोल के बोला, आप बैकवर्ड से भी कर दिए तो भी वो सेम ही आंसर आता। मैं 2 3 क्वेश्चन को ऐसे भी चेक करा, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का उतना इंपॉर्टेंट रोल इसमें नहीं है, मगर फार्मूला इंपॉर्टेंट रहता। तो अपने टेबल बनाएंगे, देखिए अभी मैं टेबल बना रहा हूँ। 1 2 एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, वाई के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, और ये 1 2 3 4 है ना, तो टेबल क्यूब तक ही जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी इसमें। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हियर। टेबल बनाएंगे, वैल्यूज निकालेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो मैं न्यूटन फॉरवर्ड के लिए टेबल बना रहा हूँ। एक्स के वैल्यूज के लिए है, दिस इज फॉर वाई वैल्यूज। ये डेल वाई
दिस इज डेल स्क्वायर वाई एंड लास्ट में डेल क्यूब ऑफ वाई। 4 वैल्यूज है तो 3 तक जाता, 5 वैल्यू है तो 4 तक जाता। एक कम रहता समझिए बस। चलिए अभी देखेंगे अपन इसमें वैल्यूज का सपोर्ट करेंगे। हियर एक्स, हियर वाई, हियर डेल वाई, हियर डेल स्क्वायर वाई, हियर डेल क्यूब ऑफ वाई, and the values are 0, 1, 2, 3. Corresponding y values are 1, 2, 1, 0. तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो अपने काम की है, दैट इज कॉल्ड एक्स जीरो। ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपकी काम की है, दैट इज कॉल्ड वाई जीरो। तो ये ऑब्वियसली वाई वन हो गया, ये वाई टू हो गया, ये वाई थ्री हो, ठीक है ना? ठीक है। अब देखो, डेल वाई Yes, sir. जीरो करना है, इसका मतलब 2 - 1। यहाँ पर अब फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 - 1 इज 1, and then del y1 means 1 - 2 is -1. Next del y2, y2 means 10 - 1 is equal to 9, correct? नेक्स्ट आइए डेल स्क्वायर y0, मतलब इसका डिफरेंस -1 -1, दिस इज बिकम्स -2, दिस माइनस दिस इज डेल स्क्वायर y1 which is equal to this minus this 9, minus into minus plus 10. नेक्स्ट आता लास्ट में डेल क्यूब y0 which is equal to this minus this 10 minus into minus plus, so it is becomes 12। खत्म। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय बाय न्यूटन्स न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंस इंटरपोलेशन भी बोल के लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन फार्मूला। तो व्हाट इज द फार्मूला? अभी आपको पिछले पेज में हम फार्मूला लिखना बताया, अभी मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला लिखने का लॉजिक और उसको याद करने का भी प्रोसीजर बताता हूँ। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ये, कोस दोनों सेम ही रहते हैं। दैट इज फर्स्ट वैल्यू इज वाई जीरो प्लस पी इंटू डेल वाई जीरो प्लस p इंटू पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, p इंटू पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब ऑफ वाई जीरो। ये टेबल अपना वाई क्यूब तक ही जाएगा, डेल क्यूब तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, तो वैल्यूज है ही नहीं। ठीक है, अपने को पी फाइंड आउट करना है। देखिए पी के लिए यहाँ पर क्या लॉजिक दिया अपन फॉर्मूले में, पी के लिए क्या बोल रहे हैं, एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एच। ठीक है, एच का है, एच क्या है बोलते हैं, ये लोग का डिफरेंस है, ये ऐसा करके देख लेना आप। ये कितना डिफरेंस है, वन 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 का डिफरेंस है, तो हियर एच वैल्यू इज वन, सो एच वैल्यू इज वन। ठीक है, एच वैल्यू इज वन, और आप पी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एच, सो पी इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स है, एक्स जीरो की वैल्यू है जीरो, तो जीरो तो आप में भी लिखेंगे तो चलेगा, एच वैल्यू वन है तो पी इज इक्वल टू एक्स आ जाता। ठीक है ना, पी इज इक्वल टू एक्स। अब ये पूरे वैल्यूज इसमें रख दीजिए आप,
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो की वैल्यू है 1 प्लस पी की वैल्यू आ गई आपको x इंटू डेल वाई जीरो की वैल्यू है 1 प्लस p इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल x इंटू एक्स माइनस 1/2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली इंटू डेल स्क्वायर वाई जीरो की वैल्यू है यहाँ पर -2 प्लस p वैल्यू है आपके पास x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू x-2/3 फैक्टोरियल का मतलब होता 6 इंटू डेल क्यूब वाई जीरो की वैल्यू आपके पास है 12। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 6 वन जा, इट इज गॉन ट्वाइस, 2 वन जा, 2 वन जा, इट इज कैंसिल। So then f of x is equal to get 1 plus x plus into minus is minus x into x minus 1 x into x minus 1 और ये 6 टू जा मतलब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको और फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट ए पॉलिनोमियल बट आई विल शो यू व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यू विल गेट इट। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स plus 2x into first we multiply inside here x into x square then x into 2 बोल तो minus 2x बोल तो minus x minus 3x हो जाता plus 2 1 जा 2। so this is f of x is equal to 1 plus x plus minus x square plus x and you multiply this one 2x cube will get and minus 3 to the 6x square you will get it plus 2 to the 4x। now how many x cube terms are there? Polynomial बोल रहा क्वेश्चन में so definitely polynomial मिलेगा आपको। this is 2x cube and x square terms are -6 और माइनस बोलता -7x स्क्वायर हो गए और ये 4 प्लस 5 प्लस 6x दिस इज 6x एंड ये हो गया +1। ये आ गया एफ ऑफ एक्स। आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 4 मतलब जहां पर भी x है वहां पर रखिए 4। तो x की प्लेस से 4 रख के आप इसको सिंप्लीफाई करो आप चेक कर लो दैट इज आंसर इज 41। अब इसके साथ साथ आपको एफ डैश ऑफ 4 करना है तो मतलब एफ डैश ऑफ एक्स करना डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर मतलब 3 टू द 6x स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x बोलो 7 टू द 14x और ये हो गया +6 और एफ डैश ऑफ 4 अगर करें मतलब जहां भी x है वहां पर 4 रखें तो इसका आंसर आ रहा है 46। ये दोनों जरा आप चेक कर लो वी डोंट हैव द स्पेस दैट इज व्हाई आई हैव नॉट डूइंग दैट वन। तो ये है न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले का एक्चुअल यूज कैसा करते हैं तो फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज। ठीक है न्यूटन्स फॉरवर्ड Yes, sir. फार्मूला। ठीक है अच्छे से देख लीजिए फाइंड आउट है तो बताइए फिर मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ। एक बार फॉर्मूला भी देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर देख लो फार्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस टी इंटू डेल वाई जीरो p into p minus 1 2 factor del square y 0 p into p minus 1 into 3 factor del cube y 0 प्लस एंड सो ऑन। ये फॉरवर्ड फार्मूला करने का टेबल कैसा ले रहे हैं अपन ऐसा ले रहे वाई वन माइनस वाई जीरो वाई टू माइनस वाई वन वाई थ्री माइनस वाई टू वाई फोर माइनस वाई थ्री वाई फाइव माइनस वाई फोर करने से ये टेबल मिल जा रहा। फिर इनका डिफरेंस ले रहे वाई वन माइनस वाई जीरो फिर वाई टू माइनस वाई वन वाई थ्री माइनस वाई टू वाई फोर माइनस वाई थ्री ऐसे ये जो है ना फॉरवर्ड है। बैकवर्ड में अपन रिवर्स में करते हैं वाई फाइव माइनस वाई फोर करते हैं उल्टा जाता है वाई फोर माइनस वाई थ्री माइनस वाई टू वो बैकवर्ड फार्मूला इसमें जहाँ माइनस आ रहा वहाँ प्लस होता है। ये दोनों टॉपिक्स एक जैसे जो है ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आप फ्री हैं तो फिर मैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले का भी क्लास अभी 5 मिनट में फिर लेता हूँ। ये फॉरवर्ड का था बैकवर्ड भी इसके जैसे ही रहता उसका ब्रदर ही है उन्हें भी तो छोटा सा ही डिफरेंस रहता। अगर आप एग्री है बोले तो फिर मैं वो मीटिंग भी शेड्यूल करता हूँ जी अभी सर, ले देर में लूंगा। 5 मिनट में फिर वो भी कर लेंगे अपन आज। हाँ
अच्छा हो जाता, ओके फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों भी हो जाते हैं आप। ठीक है ना? तो फिर मैं इसको सर, सेट लेकिन कर, और क्वेश्चंस कराइए इससे और रिलेटेड। क्वेश्चंस कराएंगे, और क्वेश्चंस कराएंगे, बेसिक तो मिल जाती है ना आपको। यस सर। सब उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस करेंगे अपन। ओके पूरा तीनों का कॉन्सेप्ट एक बार आपको मिल जाएगा ना, तो क्वेश्चंस देख के भी आप पहचान सकते हैं ना, इसको फॉरवर्ड से करना है, इसको बैकवर्ड से करना है, इसको सेंट्रल से करना है बोल के। तो एक बार बेसिक दे देता हूँ मैं, बैकवर्ड का भी बेसिक दे देता हूँ। अभी 5 मिनट्स के बाद फिर हम आपको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, तो आप ज्वाइन करिए। ठीक है? ओके ओके। ये पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भिजा दूँ।